Hi, everybody. Hi, guys. Hello. So, how are you doing, people? Good evening, everyone. Hi, everybody. So, a very warm welcome to today's Insta Live brought to you by Team Guide IS. This is Hiteshi, the host for the day. I hope you all are doing well. So, today we'll have a very beautiful, inspiring, and a detailed conversation about UPSC with two eminent officers, that is IFS Sadav Chaudhary and IAS Divyanshu Nigam. So, without any further delay, with all the love in our hearts, let's connect with both of them. Hi, Teshi. Hello, ma'am. A very good evening. Good evening. Am I audible properly? Yes, ma'am, you're clearly audible. All I right. hope you are doing good. Yes, I'm doing fine. Divyanshu is Oh, yet to join. yes, ma'am. I'll just send him a request and then we'll begin. So if you're watching, I have sent you an invitation. Kindly accept it. Sir, kindly accept the invitation. Is this fine? Hi, Hi, Siddharth. sir. हाँ अब ठीक है. Good evening, sir. Good evening, good evening. I hope you're doing great. अरे एकदम बढ़िया. आप बताओ. Badhiya, sir. So, firstly, welcome to Guide IAS. Thank you very much. Thank you so much for joining with us. So, before we begin with our talk, let me quickly introduce you for our audience. Hmm. So, guys, Ladies first I'll first. begin with ma'am. Yeah, Hmm. sure. So, Miss Chaudhary hails from Roorkee. She has done her graduation in chemical engineering from NIT Jalandhar. Thereafter, she went to Delhi to work with US-based bank, wherein she felt that she should go for UPSC, and finally she dived into the treacherous waters of UPSC in 2018. She studied wholeheartedly for 2 years and cleared UPSC in her second attempt in 2020 with an All India rank 23. So that's incredible, ma'am. Thank you. Thank you, Teshi. Similarly, Mr. Nigam, who hails from Lucknow, did his chemical engineering from BITS Pilani, Goa. Thereafter, he began with his preparation and could not make in his first two attempts.
But fighting against all odds that came in his way, he finally succeeded in securing All India rank 44 in UPSC CSE 2020. So firstly, a heartfelt congratulations to both of you. Thank you. Thank you. So we'll begin with the questions, right? Yeah. Okay, the very first one is, as both of you are from engineering background, so what made you go for UPSC? You know, basically the why behind UPSC. Okay. See, I always had this dream कि UPSC करना है, but engineering was more of a backup option for me because we know that success rate is so low. So somewhere down the line 12th करने के बाद मैं and अभी भी शायद सेम एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ कह लीजिए आप या जो भी चीज है कंस्ट्रेन रहती है कि हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं. So that's how engineering happened, and UPSC is, I believe, in my case, was something waiting to happen. So when I felt कि अभी थोड़ा एकदम सिक्योरिटी आ गई है, एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ I can take the leap of faith. So that's when I quitted in 2018, moved back home, and started preparing full-fledged for UPSC. Okay, ma'am. My inspiration comes like from my family itself. My father was in the Indian Forest Service, so बचपन से ही वो देखा था, तो I had that inclinations. Then when I was in class 10th, तो my brother also got into the Indian Revenue Service. So वहां से भी थोड़ा और inspiration मिली. फिर मैं जब आया, मैं got to the exposure कि क्या syllabus है, what all is required, the system, the so-called system, what it is. तो वो काफी इंट्रिगिंग से लगा मुझे that it is worth joining. And after all, I come from UP. I think Sadaf also is from UP. So we know the aura of IAS, IPS and all that. वो तो unparalleled है ही है. तो No, I वो don't. हमेशा से रहा. हाँ मुझे लगा है ना. So I saw that कि तो that always ही मतलब I saw that it's a very prestigious service. Society also pays huge respect to this. तो ये हमेशा inspiration रही मुझे. Then after completing my graduation, I straight away dive into this ocean of UPSC. Yeah, that's great. So as you dived into, please tell us when did you actually begin with your preparation? I began in 2018. So it was my second attempt. In my first attempt, I could not even clear prelims. तो ये था कि थोड़ा इस अटेम्प्ट में तो आई थिंक मेरा सिंपल टारगेट था कि प्रीलिम्स निकलना चाहिए. विद टाइम देखेंगे कैसे कैसे होता है. आई स्टिल फाउंड प्रीलिम्स टू बी द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज. तो ये था. और उसके बाद थोड़ा मेंस का फिर आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स एज दे कम कि मेंस आया, इंटरव्यू आया, ये सब चीजें. सो माय जर्नी हैज बीन अ लिटिल, मतलब बहुत कुछ प्लान नहीं था, तो चलता गया वैसा सा है. दिव्यांशु सर माइट हैव बेटर एक्सपीरियंस. I started in 2017 itself कि क्या करना. 2017 later half after graduation. So I went to Delhi and joined a coaching class for some time, but I didn't find it very useful. So in hindsight, I would say that don't join it. लेकिन ठीक है, वहाँ पे भी experience रहा. Then 2018 attempt I gave at the first one. I couldn't clear the prelims, and then in the 2019 I could clear the prelims, but got stuck in the mains. Like I got shared like 20 marks less than the cutoff. So I wrote, that was a great experience also. I could see what areas I am lacking and all that. And then in this third attempt, I we started in a mission mode program. कि अब तो करना ही है. मतलब थोड़ा ईगो पे आ गया था कि यार अब 2 बार रिजेक्ट कर दिया इन्होंने यार, इतना मेहनत करके भी. तो इस तरीके से ओवरऑल रहा पूरा. ऑब्वियसली बोलने में बहुत छोटा लग रहा है, बट इट इज अ लॉन्ग जर्नी. काफी अप्स एंड Yeah, डाउन्स बने. yeah. सर अब बोल के तो हमने 30 सेकंड में बोल दिया, सर अपने भी मुझे भी, लेकिन ऐसा Right, नहीं होता है. right, sir. As you said, तो हमें पता ही है UPSC is a journey in itself, you know. Likewise, it has got its ups and downs. तो obviously आपने failure को बहुत closely देखा है. सदफ मैम also said कि first attempt में नहीं हुआ, तो आपका भी 2 attempts में नहीं हुआ. So what was that, you know, which kept you motivated throughout? क्योंकि aspirants generally यही होते हैं, एक बार नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ. Most of them they leave. तो आपको वो क्या चीज थी जो मोटिवेटेड रख रही थी, एंड हाउ डिड यू ओवरकम योर फेलियर? फॉर मी इट वाज कि काफी चीजें रिस्क पे होती हैं व्हेन यू. सो अ लिटिल बिट अबाउट माय बैकग्राउंड. आई कम फ्रॉम सम सॉर्ट एक छोटे एरिया से, एक मुस्लिम फैमिली से. सो दैट यू हैव ऑलवेज हैव दिस थिंग ना, पहले से था कि फैमिली में लोग पढ़ते नहीं है, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं. सो आई वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माय फैमिली, पूरी फैमिली से, कि जो बाहर पढ़ने के लिए कभी गई थी फॉर इंजीनियरिंग वाला पार्ट उस टाइम से.
सो यूजुअल एप्रीहेंशंस की लड़की है, बिगड़ जाएगी और कुछ हो जाएगा, दैट नो ना, दैट ड्रिल वी नो। तो वो सब चीजें थी। तो एक ऐसा था कि हमेशा से फाइटिंग अगेंस्ट द और चीजें चलती रही। उसके बाद जब जॉब कर रही थी तभी भी सेम चीजें थी कि कोई कहाँ हमारे यहाँ लोग जॉब नहीं करते हैं, तो आप कैसे कर रहे हो, कैसे इन्वायरमेंट में मेट्रो सिटी में सर्वाइव कर रहे हो अकेले। तो यूपीएससी वाज सम सॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन आई थिंक, कि हाँ क्योंकि इंडिया में आपको होता है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, एक बड़ा एग्जाम है, ये सब चीजें। तो पहले मैं ये सब सोच के आई थी बहुत ही आइडियलिज्म के साथ में। बट जब पहला प्रीलिम्स, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो स्ट्रेस होता है, ये कभी भी अच्छा नहीं होता है आपके लिए, क्योंकि वो आपको बॉग डाउन कर देता है। जब पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ तो वी हैड दिस ना कि अच्छा आप तो फेल हो गए हो जिंदगी में, आप तो हमेशा टॉपर थे, आप कैसे फेल हो सकते हो। तो वो बहुत एक शॉकर था। बट आई थिंक यूपीएससी अपने आप में एक जर्नी है। आपको ये सिर्फ नॉलेज नहीं इम्पार्ट करता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी लाइफ के बारे में इम्पार्ट करता है। और दैट वाज द टाइम आफ्टर प्रीलिम्स दैट आई टुक अ स्टेप बैक, आई एनालाइज्ड अपने आप को भी, अपनी जर्नी को भी, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ। तो वो मोटिवेशन आई थिंक बहुत इंटरनल होती है, क्योंकि आई रिमेम्बर मैंने पूरा एक महीना लिया था और मैंने अपनी मिस्टेक्स देखी एकेडमिकली कि क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुआ है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। बट मैंने साथ में ये भी देखा कि मैं ऐसा कर क्यों रही थी, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं क्यों इतना ऐसा फील कर रही थी कि जिंदगी खत्म हो गई है, पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे होगा आगे। तो कुछ भी बुरा हो जाए कभी भी इतना बुरा नहीं होता कि आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो जो चीज थी ना कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो हम जिंदगी के साथ में कुछ और कर सकते हैं। आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन माई टारगेट, जो भी तुमने यूपीएससी है जो चीजें सोची हुई है। तो एक बार जब उस मोड में आप आ जाते हैं, फिर एग्जाम उतना बड़ा एक डर नहीं रहता है उस चीज का। आपको लगता है कि एग्जाम है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। तो आई थिंक दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। I think. Yes, Hello, sir. am I audible? Yeah. Yes, sir. I think Sadaf has beautifully explained. मेरा तो इतना कुछ नहीं था ज्यादा. मेरा more motivation था because it is the toughest job and toughest examination in the world. So I took it as a challenge that I should do this. ये अच्छी चीज, which is interesting. Then the syllabus itself was quite interesting. Is quite interesting. Coming from engineering background, we hardly know anything how India runs, how India functions. हम लोग का तो बस वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में निकल जाता है सब कुछ. तो when I got into this पॉलिटी इकोनॉमी, तो I got very interested. यार this is beautiful. मतलब ऐसे चल रहा है देश, मतलब पार्लियामेंट में ऐसे ये लोग करते हैं, लोग वहां जाके काम. तो ये सब ना जो सिस्टम है. फिर पता है मेरे को जब ये इस सिलेबस ये इस मतलब इस एग्जामिनेशन पीरियड में जब मैंने और जैसे पढ़ा, जैसे इनफैक्ट इन कोविड टाइम्स ऑल्सो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि यार इतना बड़ा सिस्टम 165 करोड़ लोग को कैसे मैनेज कर रहे हैं क्या. तो ये चीज ना वो टू बी द पार्ट ऑफ दिस एंड टू बी द डूअर कि मैं करूंगा ये काम, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेक अप द चैलेंज, उसको फिर करो, प्रूव करो अपने आप को. तो वो मेरे लिए काफी मोटिवेशन था. और फिर वही जो सिलेबस को जैसे जैसे मेरे को देखा कि यार इतना पढ़ा भी तो इतना सब और बचा है करने को, काफी इंटरेस्टिंग चीजें बच रही हैं. तो दैट वाज आल्सो मोटिवेटिंग फैक्टर कि यार वो देखते हैं, वो भी जानते हैं, क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर. एंड दिस एग्जाम प्रोवाइड्स, मतलब सिर्फ मजे के लिए नहीं पढ़ना है, दैट एक्चुअली विल बी आस्क्ड इन एग्जाम. तो आपके पास मोटिवेशन ये भी रहता है, ये पढ़ भी रहे हो तो नॉलेज तो बढ़ी रही है, यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू सम टेंजिबल थिंग. तो ये भी मुझे बड़ा मोटिवेटिंग लगता था. तो यही इतना रहा. बाकी तो सड़क का आंसर बहुत अच्छा था, वो लोगों को ज्यादा इंस्पायर करेगा. Okay, so motivation is internal basically. या इंटरनल, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज अ वेरी फ्रेजाइल थिंग. इट विल गेट एग्जॉस्टेड सुपर सून. इंस्पिरेशन, अगर आज हम बात कर रहे हैं, बच्चे आज इंस्पायर्ड हो जाएंगे, रात को 10-12 बजे तक पढ़ेंगे, वो इंस्पिरेशन है, 1-2 दिन की होती है। मोटिवेशन कम्स Short फ्रॉम term. इनसाइड। एंड मोटिवेशन इज द डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट. मोटिवेशन तो आता जाता रहता Right. है. Right, right. Okay, so moving on, we all know that we are a part of digital era now, 2021, everything is digitalized. So when we talk about this knowledge, it is available in abundance, especially the resources for UPSC. So let us take an example. अभी NCERT books हैं, तो एक तो आप बुक्स पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो बेसिकली क्लासिक वे ऑफ रीडिंग. द अदर वेज आपको पता है कि यूट्यूब पे चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं. सो व्हाट वुड यू प्रेफर, में किया क्या था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? आई बिलीव, am I audible थोड़ा? हाँ, ओके. यस आपके मैम. पास बुक्स हैं और एनसीईआरटीज पर्टिकुलरली, एनसीईआरटीज को नॉट, दे कांट बी स्किप, यू कांट अफोर्ड टू स्किप देम रादर. तो आपको अच्छे से वो जो पढ़नी है. उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपके 3-4, वो पढ़ना है. यूट्यूब का या फिर गूगल सिंपली आप हेल्प ले सकते हैं, बट आई बिलीव वो ज्यादा तब होता है जब आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है. जैसे आई रिमेम्बर कि मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, तो मैं जितने
बंटी मैम के लेक्चर्स है, तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली उनको रेफर किया। तो ऐसे फॉर कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए, कुछ कुछ कंसेप्ट के लिए यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल और यूट्यूब, लेकिन मोर और लेस लीन, तो आपका जो लीनिंग्स है वो बुक्स की साइड ही रहना चाहिए। और हाँ, आई थिंक दैट्स इट। मेरा Okay. थोड़ा था कि एनसीईआरटी तो यू कैन डू फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो भी करना है दैट इज ओके। बाकी मैं डिजिटल में मैं बहुत ज्यादा ओवर रिलाई करता था। मैं लाइक मेरा लैपटॉप तो दिन भर ही चलता रहता है कि कुछ ना कुछ करता है। कि मेरा सिंपल सा होता है, कुछ भी आपको जैसे सर्च करना, मान लो सिंपल सी चीजें, मान लो आपको क्या करना है, चाइल्ड छोड़ो यार, डाउरी जैसे डाउरी के बारे में कोई चीज है, जस्ट दैट डाउरी स्पेस यूपीएससी, काफी कुछ मिल जाएगा, अच्छी अच्छी लेटेस्ट खबरें क्या है, लेटेस्ट लॉस क्या है। तो इसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट यस, बेसिक्स यू शुड बी डूइंग फ्रॉम योर बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बट आजकल का जैसे सिलेबस है ना, स्पेशली फॉर मेंस, जीएस2 और जीएस3 में, वो बुक्स तो लक्ष्मीकांत से होगा नहीं अब वो जीएस2। अब वो आता है लेटेस्ट क्या चल रहा है, लाइक आप यू हैव टू रेफर टू द पीआरएस, कोई नया बड़ा लॉ आया है तो पीआरएस की समरी पढ़ लो। ठीक है, कोई भी आजकल जैसे मैं विजन की जैसे मैं पढ़ता था मंथली उसका, तो मैं डाउनलोड करके ऑनलाइन ही पढ़ता था उसको, वो प्रिंट करा के कौन करे। मैं ये नहीं कहता सब लोग ही करो, बट मैं ये करता था तो वो चलता था मेरे को। सो आई थिंक यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द राइट वे इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट गिव्स यू एज ऑल्सो। जैसे मेरे 80% नोट्स भी एवरनोट पे बने हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखो, अगर तुम प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हो, वो सब मिला हुआ है, यू आर ए डिजिटली लिटरेट पर्सन, बेटर यूज इट। थोड़ा इंप्रूव रहेगा, Right. मुझे लगता है इंप्रूव रह सकता है इससे। तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। बट हाँ, ये जरूर होता है कि आप जब इंटरनेट पे कर रहे हो तो यू शुड बी अवेयर कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम सब बंद करके रखो बगल में, ये नहीं कि एक टाइम में आप कूद के वहां चले गए। Yeah, ये थोड़ा distractions should not be there. ये डिसिप्लिन थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपका। Okay. So moving on, as we know, trends of prelims are changing day by day. It's becoming trickier, unpredictable at the same time. So as an aspirant, what would you suggest कि अभी क्या strategy होनी चाहिए? कैसे crack करें prelims को? यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, फिल्म ऐसा मुझे लगा इस बार फिल्म देख के कि मैं खुद देती तो फेल हो जाती। तो वो तो ऐसा है कि कोई ट्रेंड नहीं उसका प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन हाँ, हम जितना प्रीएम्प्ट कर सकते हैं दैट इज, वो हमेशा मेरा रहता है कोशिश। तो आप कुछ भी देखिए पेपर, हमेशा पेपर अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, कट ऑफ कम चली जाएंगी, तो ये मत सोचिए कि ऐसा पेपर आ गया कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज, अपनी साइड से आप ये देखिए, कुछ स्टैटिक आएगा 50% लगभग, मोर और लेस 50% आपका करंट आता है। तो आपका जो स्टैटिक है वो आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं वो आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको प्रीएम्प्ट करना है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स का होता है, उसमें मुझे लगता है कि आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो रिविजन हैं आपके, वो आप करके जाइए, उतना आपके हाथ में है। कुछ कुछ टॉपिक्स आपके वीक होंगे, जैसे मेरा इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, आई फेल्ट आफ्टर प्रीलिम्स कि मेरा वीक था, तो मैं उनको 2 मैगजीन से सप्लीमेंट कर लिया करती थी, लेकिन पूरी पूरी दोनों नहीं पढ़ लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें, करंट और स्टैटिक का इतना पार्ट ऐसा है कि वो आपको करना ही है, क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। उसके अलावा थोड़ा सा अगर आपका एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, जैसे बहुत 2-3 अटेम्प्ट से फंस रहा है अगर प्रीलिम्स, तो मैंने तो फिर आखिर में आके ऐसा हो गया था, आई वाज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। तो मैंने तो पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये वो सब एकदम रट के, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फिर कोई स्केप नहीं है आप उस जगह से ना। आप मैप पे चाहे उसको प्लॉट करके देखो, जैसे भी आपका एक वे है पढ़ने का, तो इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर आप ये मानो कि वो फिर किसी को भी नहीं आ रहा है, तो उसको आप मतलब यूपीएससी पे छोड़ दो, कमीशन खुद देख लेता है। Right. So that was such an honest answer. So what about you? इसी का ऑलमोस्ट ऐसा ही है। वही बेसिक द बात है कि देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन जो हाइपर बाउंसर्स विल कम, फॉर एग्जांपल दीज अवार्ड्स या क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चंस आ गए थे। सो द थिंग इज दैट कि ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस हो जाते हैं, तो यू ऑलवेज एसोसिएट लाइक 2020 अटेम्प्ट विद दीज क्वेश्चंस ओनली। बट अगर आप देखें तो दीज क्वेश्चन मस्ट बी 10, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बाकी द बेसिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वो अभी भी है। तो मेक श्योर यू डू नॉट डू दोस थिंग रॉन्ग, है ना। 2-4 क्वेश्चन, इफ सच क्वेश्चंस आर कमिंग, तो मार्केट में वही लग जाता है यार, इस बार तो ऐसे क्वेश्चन आए, इस बार तो ऐसे क्वेश्चन आए। बट फिर भी एक बेसिक चंक जो 60 क्वेश्चंस का आ रहा है, दैट इज स्टिल कमिंग फ्रॉम द बेसिक्स जो आप पढ़ते हो। तो योर बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग, योर एक्यूरेसी इन द बेसिक्स शुड बी 100%। इफ यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट करेक्ट। अब इतना कर दिया तो बाकी फिर ये ऊपर नीचे वाले जो थोड़े बाउंसर्स आते हैं, वो डक करके छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है ना, जो जिसमें के जैसे कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, इस बारे में भी पेपर में भी दे अटेम्प्टेड 90, गलती होगा, फिर 94 क्वेश्चन करके आओगे तो गलती करके आओगे, इतने क्वेश्चन करोगे तो अटेम्प्ट कम कर दिए जाते हैं फिर। तो प्रैक्टिकल बन के सोचो थोड़ा।
हाँ, इस चीज में Right. आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट ऑफ फर्दर Right. इन्फॉर्मेशन कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ जाइए। ये नहीं कि मैं 95 ही अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि मैंने टेस्ट में किए हैं। तो मैं तो एक रेंज लेके जाती थी कि पेपर नॉर्मल आया तो 90 अटेंड करने हैं, बहुत इजी लगा तो 95 कर लो, थोड़ा डिफिकल्ट लगा तो 85 कर लो, थोड़ा रेंज। ये नहीं कि उतने ही क्वेश्चन करके आए, हाँ हाँ हाँ, तो वो गौर सही कह करना रहे पड़ेगा। Okay. So the next we have a question from our audience. I'll read it out. Okay. So for the aspirants who have been preparing for the last year, which means 2021, but couldn't clear it, how should they frame their future approach and utilize their time as they have already covered the standard books for prelims? दिव्यांशु से तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, सर कैन गो फर्स्ट। यार तुम सर तो मत बोलो कम से कम। द थिंग इज दैट कि अभी आप मेंस का तैयारी करो, अगर आपका अभी 21 प्रीलिम्स रह गया तो यू शुड फोकस ऑन मेंस फर्स्ट। मेंस अच्छे से कर लो, आंसर राइटिंग करो, प्रिपेयर योर नोट्स वेल, एसोसिएट विद द कीवर्ड्स जो कि मेंशन्ड होते हैं आपके सिलेबस में, उसके नोट्स बढ़िया बनाओ। देखो सिंपल सी बात ये याद रखो कि प्रीलिम्स से फेल होने का मतलब ये नहीं कि अगली बार आप प्रीलिम्स 5 महीने पढ़ के जा रहे हो, है ना। प्रीलिम्स सिर्फ हॉल टिकट है मेंस का, टॉप नहीं करना है वहां पे। आप कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा लो, दैट यू आर स्टिल ओके। तो आपको अभी अभी से प्रीलिम्स का नहीं पढ़ना है, फिर अगली बार अब जब प्रीलिम्स कब है, शायद मई एंड में है ना, तो 22 में, तो उसके 2-2.5 महीने पहले स्टार्ट कर दो पढ़ना, तब पढ़ना प्रॉपर जैसे प्री पढ़ा जाता है, सर ने बोला था उसी टाइप से। जो चीजें तुम्हें कमी लग रही है वो चीज दोबारा पढ़ो। जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल भी आते हैं, यू शुड नो दैट, वो सब गलत नहीं होने चाहिए, बेसिक्स क्वालिटीज। लेकिन अभी से मत पढ़ने लगना प्रीलिम्स के बारे में। वैसे मैंने क्या देखता हूँ कि जो लोग एक बार प्री फ्री होते हैं तो अगली बार वो तुरंत ही प्री का पढ़ लेते हैं, तो साल भर प्री का ही पढ़ते रहते हैं। तो प्री में हो भी जाएगा तो फिर मेंस में क्या करोगे, है ना। मेंस के टाइम पर जो आजकल जो टाइम चल रहा है ना प्री और मेंस के बीच में, इस समय सिर्फ लिखना जाता है, पढ़ा नहीं जाता है इस समय ज्यादा। तो यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन मेंस। अभी तो तुम मेंस का पढ़ो, बाकी फेब से प्रीलिम्स का पढ़ना होता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है बिकॉज आई रिमेम्बर अपने टाइम पे आई स्टार्टेड विद ऑप्शनल। शुरू में 1-2 महीना ऑप्शनल को हाँ। दो आप, क्योंकि वो बाद में टाइम नहीं लगता है उतना, एक बार रिवाइज करना का टाइम मिलेगा बहुत से बहुत आफ्टर प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करते हैं तो ऑप्शनल हम्म को 2 महीने आप अपने जीएस को दो, चारों सब्जेक्ट्स को कवर करने का ट्राई करो। और अगर किसी को बहुत मन है तो वो एसए का थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मटेरियल, बिकॉज एसए आई फील ना इज वन सब्जेक्ट जो बहुत ही कम इनपुट के साथ बहुत ज्यादा आउटपुट देता है। और जनरली बिल्कुल। एसए में सब लोग ये करते हैं कि वही 40-50 जो थीम्स होती हैं, ज्यादा हो गया 20-30 थीम्स होती हैं, एजुकेशन हेल्थ ऐसे करके। तो उनके दो हम्म दो दो 3 पेज के फोटो मटेरियल एग्जांपल्स डाटा कलेक्ट कर लो। वो उस टाइम पे आप रिवाइज करके ना हर संडे संडे 3-4 एसेज लिख दो कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो बहुत ही मतलब ना लो, एकदम लो हैंगिंग फ्रूट टाइप से। तो इसलिए अभी हम्म। ये 4 महीने आप ऐसे दीजिए, बाद में जो 3 महीने बहुत मन कर रहा है तो थोड़ा और 3.5 महीने कर लो, उसको प्रीलिम्स को दे दो। लेकिन अभी के लिए मेंस इज शुड बी योर प्रायोरिटी। Okay. So next is the question, as I mentioned earlier, कि UPSC is a journey in itself. So obviously it has its own pace for every individual. तो उसमें ups and lows होते ही हैं. So what was the moment जब आपको बहुत ज़्यादा low feel हुआ, so much so that कि UPSC was a question mark for you back then. So what was that moment and how did you overcome it? या इफ आई वुड बी ऑनेस्ट ना, ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं। मतलब सेल्फ डाउट तो बहुत ही रहता है पूरे प्रोसेस में। आई रिमेम्बर रिजल्ट से एक दिन पहले तक भी मुझे लग रहा था कि दोबारा अटेम्प्ट ना लिखना पड़ जाए, और आई वाज सो श्योर कि 2 अटेम्प्ट्स ही देने हैं, क्योंकि जर्नी लंबी नहीं हो पाती मेरे से। मुझे पता था कि अभी नहीं हुआ तो आई वुड गो बैक टू कॉर्पोरेट। सोच के आई थी 2 अटेम्प्ट देने, क्योंकि स्टेक्स थोड़े ज्यादा थे। तो एक आरबीआई दिन में हो पहले रखा है तक ना, तुम्हारा, आरबीआई में क्या हो रखा था तुम्हारा, ठीक है, आरबीआई में हो रखा था तुम्हारा। बता दो बता ओके, दो। see that is the height of self doubt कह लो आप, कि आप बैकअप भी पहले सिक्योर करके चलते हो। तो मैंने आरबीआई भी दिया था। तो ये चीज होती है। और आई रिमेम्बर कि ये मतलब मुझे लग रहा था, और जब मेरा रिजल्ट भी आया तभी भी मी एंड माय सिस्टर हम लोग रिजल्ट देख रहे थे। शी वाज लाइक कि 23rd रैंक पे मेरा नाम दिखा जब मैंने सर्च किया, एंड शी उसका पहला जो एक इंस्टेंट रिएक्शन था वो ये कि सीरियल नंबर होगा, रैंक तो हो ही नहीं सकती है। सो दैट इज द हाइट ऑफ सेल्फ डाउट, एंड आई एक्चुअली रीचेक कि सीरियल नंबर तो नहीं है रिजल्ट में, जबकि वो होता नहीं है। तो ये चीज मैं बच्चों को बता दूं कि अगर हम आज टॉपर है तो कल तक हमें पता भी नहीं था कि हम कहाँ एंड अप करेंगे। तो बिल्कुल। सेल्फ डाउट सबको आते हैं और मोटिवेशन भी लो होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने इमोशंस पूरी जर्नी में कैसे मैनेज करते हैं। इमोशंस होना बुरी बात नहीं है, उनका मैनेजमेंट ना होना बुरी बात है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं लो फील कर रही हूँ तो आई यूजुअली यूज टू टेक अ ब्रेक, हाफ डे का, एक दिन का। यू कैन हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, थोड़ा मूवी देख लो, बुक पढ़ लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, वट एवर इज योर एस्केप।
तो ये चीज कीजिए। साथ में कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहने का मेरे को ये लगता है कि आप ना टारगेट्स बना के पढ़िए, वीकली टारगेट्स बना के, उनको अगर आप अचीव कर रहे हैं अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है, पूरा दुनिया एक तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम पे ही चल रही है, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। तो ये सब चीजें बहुत ही कॉमन है। और बाकी सब लोगों को बाकी लोगों से मैंने सुना है थोड़ा वो ये कि लोग लिख के अपने इमोशंस को थोड़ा जर्नल वो एंट्री करते हैं, राइटिंग वाइटिंग, ये सब चीजें भी है। तो वट एवर हेल्प्स। सर बोल रहे हैं कुछ? अरे यही यही बोल रहा था, मैं करता हूँ, ये बोल रहा था, तो बोलो क्या बाकी बोलो। बोलो बोलो सर, आप बोलो। हाँ, दिस इज द थिंग ना कि यार देखो, सेल्फ डाउट्स आएंगे, दे विल कम फॉर श्योर। ये जर्नी इसी की है। सेल्फ डाउट कितनी बार आ गए, मेरे तो 3 अटेम्प्ट हो गए, मेरे को तो इससे डबल आए होंगे। ठीक है, तो द लोएस्ट पॉइंट वाज दैट ना कि जब मेरा 2019 का मेंस का रिजल्ट आया था, दैट वाज जनवरी 15 2020। ठीक है, तो उस टाइम पे लाइक आई एक्चुअली लाइक प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर द 2019 में। मुझे जो लगा था उस टाइम पे कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, और आई वाज कॉन्फिडेंट आल्सो कि मेरा हो जाएगा। बाकी इस बार मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना पिछली बार तक मेरा हो जाएगा, तब नहीं हुआ। तो आई वाज एक्चुअली लाइक कि आई वाज शैटर्ड कि यार ये कैसे हो गया, मतलब कॉल तक नहीं आई यार, कम से कम इंटरव्यू जाने तो देते एक बार कम से कम। तो ठीक है, तो दैट वाज अ प्रीटी लो टाइम। बट आपने बोला ना कि ऐसे कि यूपीएससी ही छोड़ दे, वो मेरे में नहीं आया कभी। मेरे को मैंने उसको चैलेंज में लिया कि यार नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, अब तो कर, अब तो मतलब मैंने बोला ना, ईगो पे आ गया था। मतलब ठीक है, थोड़ा अजीब सा लगता है ऐसे बोल रहे, लेकिन उस समय मुझे को लगा था कि यार ऐसे कैसे तुमने कर दिया रिजेक्ट, मतलब ये थोड़ी ना कोई बात होती है। तो आई कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो ये तो मेरे में कभी नहीं आया कि मैं छोड़ दूंगा इसको। ठीक है, ये तो मेरा था कि मैं इसको करूंगा, तो यही करना है, तो यही है, क्योंकि यही ठाना है इसको। बट हाँ, उसको कैसे रिवाइव करना है जब लो पॉइंट आए, तो मैंने वही बोला था। या तो देखो, सबसे आसान तरीका है, सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, आधा पौन घंटा सो जाओ, योर माइंड विल बी रिजुविनेटेड उतनी देर बाद। सेकंड इज दैट यू शुड कीप अ डायरी विद योरसेल्फ, फिजिकल डायरी, हाथ से लिखो उसमें। दैट हेल्प्स यू अ लॉट, और वो काफी इमोशनल मैनेजमेंट के लिए भी काम आएगा आपका। फिर अगर तो किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो दे कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन, दैट इज अ वेरी वेल प्रूवन थिंग, है ना। और जैसे कभी कभी मेरे पे ऐसे लोग, दे डू हैव सीरियस एंजाइटी इश्यूज, दे शुड कंसल्ट, मतलब इट्स नॉट अ टैबू, दे शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल हेल्प आल्सो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दे शुड डू दैट। बहुत लोगों को होता है चीज। ठीक है, वो भी कॉमन है, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग को होगा, और इस जर्नी में हो भी सकता है। आप टेस्ट को पढ़ के जाओ, फिर भी नंबर नहीं आए, है ना। अभी मॉक जब देते हैं ना, तो मॉक उसके इंटरव्यू के मॉक्स देते हैं, तो भाई कभी कभी ऐसे रिव्यूज मिलते हैं ना कि यार कर क्या रहा हूँ इस जिंदगी में, यहाँ पे कैसे आ गया मैं। तो उस टाइम पे इस टाइप की बातें आती हैं ना। तो दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, और वो आप अकेले ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट यू आर नॉट अलोन। सबको ऐसा हुआ है, सदफ को भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, सबको हुआ है, एवरीवन, रैंक 1 शुभम को भी हुआ होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, यू हैव साइंड अप टू दैट, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर ग्लोरी भी तो आप ही को मिलेगी ना, ये भी मैं तो ये भी रखता था Right. यार, इसे पढ़ने के बाद ग्लोरी जो मिलेगी वो भी तो तुम्हें ही मिलेगी ना, तो इसलिए आओ अच्छे से। Great, that's really inspiring. So, as both of you were talking about an easy escape, तो obvious है कि कोई ना कोई hobby तो रही होगी आप दोनों की. So, please tell us. Mine are to reading books. I actually love reading any sort of books. और उसके अलावा traveling. अभी तो जब से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, then कोविड हैपेंड, तो थोड़ा ब्रेक है उस चीज पे, लेकिन otherwise I used to travel a lot. Great. My also So, was what about right reading non-fiction books. I used to read non-fiction many books. वो काफी का हेल्प भी आई यूपीएससी में भी। और सेकंड वाज आई यूज्ड टू डू स्केचिंग, थोड़ी बहुत स्केचिंग, वैसे पेंसिल आर्ट, पेन आर्ट टाइप का, वो दैट हेल्प्स। और डायरी एंट्री, दैट इज अ वेरी गुड हॉबी, मतलब वो काफी अच्छी रहती है, आप यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ। और यूट्यूब पे वीडियोस, मैं बहुत वीडियो देखता हूँ भाई, मतलब बार बार के वीडियो देखता हूँ। ठीक है, Also for तो the people watching, you should have 1 or 2 hobbies. मतलब जर्नी में भी आपको हेल्प करेंगे टू सेल थ्रू, और इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर बायोडाटा में इंटरव्यू में, हॉबीज नहीं होंगी तो वो लोग क्या पूछेंगे, टेक्निकल ऑप्शनल से पूछेंगे, ग्रेजुएशन से पूछेंगे, फंस जाओगे। तो इससे अच्छा हॉबी थोड़ा रखो, और उसमें हॉबी, कुछ तो 1-2 मेंबर तो उसी पे निबट लेंगे हॉबी का पूछने में, या आपका एक्स्ट्रा करिकुलर का पूछने में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। right? Okay. So the next we'll talk about the bigger problem, that is CSAT. Most of the aspirants, they are good with GS part, but they often lack in CSAT portion. So what would be your advice on that? सी अर्लियर, इस बार सीसेट मैंने सुना काफी डिफिकल्ट आया था हमारे टाइम पे, या उससे पहले तो लोग इंग्लिश का करके निकल लेते थे। तो अभी ऐसा शायद नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, बिकॉज इंग्लिश अगर आप लैंग्वेज पे रिलाई कर रहे हैं। तो मैथ्स अब नॉन नेगोशिएबल है। मैथ्स के लिए आई थिंक 10th क्लास तक का आता है, और एक RS शर्मा सर की बुक आती है, RS अग्रवाल, शर्मा इसको हिस्ट्री, तो RS अग्रवाल सर की बुक आती है।
हाँ उसमें काफी क्वांट्स के डीआई के कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं। तो आई रिमेम्बर कि हम कॉलेज प्लेसमेंट के टाइम पे मैंने वो बुक एक बार देखी थी, और जब मैं सीसेट के क्वेश्चन देखी थी तो काफी कंसेप्ट सिमिलर थे। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए ये है कि आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर ले लो, 10 सीसेट के पेपर लगाओगे, आपको नहीं आता है फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा, काफी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डेली के 1 घंटा देंगे और 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगाइए, जहां कंसेप्ट अटक रहे हैं वहां पे आप आरिश अग्रवाल उनकी बुक को रेफर कर सकते हैं। आई थिंक दैट वुड हेल्प। बाकी हम लोग तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते, तो आई डोंट थिंक कुछ अलग से ज्यादा किया था। सो हाँ। यार मैंने तो इतना भी नहीं किया था, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 2-3 साल के पीवाईक्यू देखे थे। मुझे अच्छा लग, मतलब आई कुड डू दैट, तो मैंने कुछ स्पेशल, बट मैं बता सकता हूँ कि हाँ इस साल फॉर द अदर्स की देखो इस साल पेपर टफ हो रहा है, 2020 में भी हल्का सा टफ। Yes, sir. हाँ 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 बारी ना। हाँ तो 21 में आई हर्ड की काफी टफ आया था, और इसकी वजह से पिछली बार जो कट ऑफ भी इतना लो गया था, दैट वाज प्राइमरी ड्यू टू द सीसैट। बहुत लोग का मतलब वहाँ पे फेल हो गए थे। तो उसके लिए देखिए यही है कि आप वही जैसे बताया 2-3 बुक्स होती हैं वो कर दो, थोड़े मार्केट में नोट्स भी आते हैं, इफ यू वांट टू रिफर टू दैट वो रिफर कर दो, और इंग्लिश को पढ़ने की आदत डालो, स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम पीपल। देखो इंग्लिश आएगी, इट्स अ गिवन रूल, इट्स रूल ऑफ द गेम है, इंग्लिश आएगी तो यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश से डरो मत, थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, बहुत टफ इंग्लिश नहीं आती है, शेक्सपियर की इंग्लिश नहीं आती है, नॉर्मल इंग्लिश आती है, बिल्कुल 10th लेवल की आती है बेसिकली। आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ देख के बस उसका मतलब निकालना होता है। इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ और क्यों इंपॉर्टेंट है ये। आप जब जैसे आईएएस बन भी जाओगे, सेंटर में काम जो भी होता है ना सब इंग्लिश में होता है, यूनियन में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी काम होता है इंग्लिश में होता है। तो आप इंग्लिश से भाग तो सकते नहीं। और कहीं आप सदब की तरह आईएफएस ज्वाइन कर लिया तो पूरी जिंदगी इंग्लिश में निकलनी है, ठीक है। तो इंग्लिश से भागो मत, इंग्लिश करनी है, ये आपको करनी ही करनी है। और मान लो आप यूपी के हो, आपको मिल गया कर्नाटक कैडर, तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ना, है ना। तो भागो मत, अंडरस्टैंड कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट। इसको हिंदी वैसे इंग्लिश मत बनाओ, क्योंकि बहुत लोग का होता है कि इंग्लिश हम पढ़ेंगे नहीं, हम हिंदी से ही निकालेंगे। डोंट मेक इट ईगो इशू। तुम्हारा अगर यूपीएससी मांग रहा है इंग्लिश पढ़ना तो यू शुड रीड इंग्लिश। हाँ तो बाकी आप नॉर्मल It's आइडिया। the होता है, need बहुत of नहीं the आता। hour. हाँ यस इट्स यस नीड यस। होता है। Okay, great. So the next question is for Sadaf ma'am particularly. Okay, so ma'am, how should be your strategy for mapping, and how did you cover one country in a single day? One country in a single day in IR? Sorry? I'm not, can you please repeat? Yes, ma'am, this is a question from one of our viewers, that how Okay. should be your strategy for mapping, and how did you cover one country in a single day One while country in a single preparing? day. Okay, so no, I didn't used to cover one country in a single day. My strategy for mapping was during the very initial phases of preparation. मैंने एक वर्ल्ड मैप, एक इंडिया मैप अपने टेबल के ऊपर लगाया हुआ था। तो मैं रोज सोने से पहले आधा घंटा खड़े होकर मैप के सामने कोई भी 10 कंट्रीज उनकी लोकेशन याद करती थी। आई स्टार्टेड विद पॉलिटिकल मैप, ठीक है, पॉलिटिकल मैप पता हो तो फिजिकल फिर भी याद हो जाता है। तो आई यूज टू रिमेम्बर कोई भी 10 कंट्रीज, जैसे आप एशिया से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब आप आएंगे वही रात को 10-10:30 बजे, आप देखोगे कल वाली ये कंट्रीज थी, अब 10 कंट्री आ गए। तो दुनिया में 200 कंट्रीज हैं, 20 दिन में हो जाना चाहिए, बहुत से बहुत 30 दिन में आपका हो जाएगा। तो 1 महीने में पूरा मैप हो जाता है। जब एक बार आपका पॉलिटिकल मैप हो गया, देन यू कैन गो फॉर फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स के लिए हमारा, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें फिजिकल के केस में, तो आपकी माउंटेन रेंजेस आती हैं, लेक्स सीज जो होते हैं आपके, ये सारी चीजें आती हैं। और हाँ जनरली प्लेट्यूज वगैरह, बस यही कुछ कुछ जो फीचर्स होते हैं जियोलॉजिकल ये आते हैं, ज्योग्राफिकल। तो उसमें क्या है कि उसके बाद एटलस आप ले लीजिए, कोई भी अच्छा एटलस, वो तो हर बच्चे के पास होना चाहिए। और मैं आई यूज टू गो कॉन्टिनेंट वाइज, कि जैसे अगर साउथ अमेरिका है तो हमें पता है कि ये ट्रेंच है यहाँ पे, या फिर इसमें ये माउंटेन रेंजेस हो गई हैं, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज में लाई कर रही है, रफ आइडिया उतना हो जाएगा। दूसरी बात ये, ज्योग्राफी में एक वर्ल्ड रिसोर्सेज, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन होता है इसमें रिसोर्सेज आते हैं, या फिर ये आता है ह्यूमन ज्योग्राफी में भी, तो उसमें भी हेल्प मिलती है। तो सेम थिंग यू कैन डू फॉर इंडिया स्टेट्स के केस में। तो आई थिंक 2 महीने में अगर आप आधा आधा घंटा डेली दोगे तो आपके मैप्स हो जाएंगे। बाकी अगर डेडिकेटेडली टाइम देना चाहते हो तो आप 1-2 दिन लग के बैठ जाओ, मतलब अब वो तो आपकी दिमाग की कैपेसिटी पे कि आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Okay, ma'am. Sir, anything you would like to add? मेरा वही होता था लग के बैठने वाला, मैं तो प्रीलिम्स के पहले ही करता था। और रेगुलर क्या है कि देखो मैप पे किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, अब वो जमाने गए कि वो माउंटेन रेंज कहाँ है, लेक कहाँ है, दे डोंट आस्क, दे विल ओनली आस्क इफ इट इज इन न्यूज, कुछ न्यूज में हो रहा है वहां पे, या कुछ इवेंट हुआ है वहां पे, कुछ नया टाइप का, है ना। या सूख, जैसे लेक असद का क्वेश्चन आया था 2019 में आया था, वो सूख गई है शायद,
या कोई तो आया था यार, ऐसा कोई लेख, हाँ वो वो सूख गई स्ट्रेट थी, फॉरवर्ड। इसलिए वो आया था क्वेश्चन में। तो अब क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जो रेगुलर कोचिंग में पढ़ाते हैं दे एक्चुअली एक्सप्लोर ईच एंड कॉन्टिनेंट, सारी लेक सारी नदियां, ऐसे नहीं हो पाएगा फिर, है ना, ये तो फिर याद नहीं हो सकता, मुझे नहीं हो सकता था ऐसे याद। ठीक है, पहली बात तो आपको डेली न्यूज जो पढ़ रहे हैं, आजकल अफगानिस्तान चल रहा है, तो अब अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इस सबके जो इस्लामिक नाम है ना, सब एक जैसे नाम होते हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लो कि अफगानिस्तान की कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, वहां क्या मिलता है इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे वहां पे कोई वैली है, वहां पे एमराल्ड की अच्छी वहां पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो ये शुड पता होना। पंजशीर वैली है ना, जो वहां पे जो तालिबान वाले कब्जा नहीं कर पा रहे थे, तो वहां का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे एमराल्ड की वहां पे माइंस है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस टाइप की चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। और आप अपने गूगल मैप पे देखो, मैं, मेरे पास मैप नहीं था मेरे स्टडी रूम में, मैं गूगल मैप देखता था जूम कर करके, क्योंकि ना बड़े वाले मैप में मेरे को समझ नहीं आते वो, तुम ईस्ट यूरोप चले जाओ वही नहीं समझ में आते, तो छोटे तो क्या ही आएंगे। तो मैं जूम करके देखता था कि कहाँ है, क्या है, आसपास कौन सी है, उसको फिर मैं अपने खुद ही बना देता डायग्राम कभी। फिर एक वो मोटी वाली जो पूरा बुकलेट आती है मैप्स की, वो खरीद लो, उसमें खुद मैपिंग करते रहो डेली डेली, या जैसे जब भी कर रहे हो। जैसे मैं तो पता मैप बहुत ज्यादा यूज करता था, बिकॉज मेरा ऑप्शनल था जियोलॉजी, उसमें भी मैप काफी यूज होते हैं। देन आई ऑल्सो हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम टू स्टडी आर्ट एंड कल्चर, तो मैं उसको भी मैप से पढ़ता था कि कर्नाटक में क्या क्या होता है, ऐसे बना दिया अलग अलग कलर की पेन से कि इसमें ये होता है। तो एक स्टेट से याद हो रहा है कि इस टाइप के वर्ड जहां भी आएंगे वो स्टेट के हैं। एक पैटर्न निकल के आएगा अगर इफ यू वांट टू डू। जैसे मान लो भाई होती है पेंटिंग, कौन सी होती है मिनिएचर पेंटिंग, यहाँ पे अलग नाम है वहाँ। तो मैं तो आर्ट एंड कल्चर भी वहां से करता था। तो जितनी जगह, और मैं अपने आंसर्स में भी मैपिंग डालना बहुत चाहता था कि मैप डालू जहां भी डाल पाऊँ, क्योंकि बहुत बार होता तो मुझे आंसर आता है। जैसे इस बार ही क्वेश्चन था ना कि पर्शियन लिटरेचर वाला क्वेश्चन आया था GS1 में, कि वो कुछ तो था, तो मैंने एक्चुअली मैप भी बना दिया था एंड में कि भाई देखो यहाँ से आए थे ये लोग। तो वो भरा भरा भी लग रहा था वो चीज, तो मैं मैप का करना होता, क्योंकि देखो कंटेंट तो आता नहीं था ज्यादा, कितने ही दो चार नाम पता था मेरे को, तो मैप डाल दिया। तो इस टाइप से आप मैपिंग पे अच्छे से करो, और प्रीलिम्स में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे विल आस्क यू प्लेसेस में न्यूज, है ना, कुछ न्यूज वाली। और तुम्हारी फिर वही जैसे तुम बताते हैं कि तुम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब है, ये सब एक्चुअली खुद मैपिंग पढ़ो मत, देख के तो सबको याद हो जाता है, आप खुद मार्क करो वो चीज। 50 के 50 टाइगर रिजर्व, 52 हो गए शायद, 52 टाइगर रिजर्व सारे मार्क करके दिखाओ। वो 34 रामसर साइट है उनको मार्क करके देखो, खुद हाथ से करो, 2-3 बार कर दो, उससे आपको याद होने लगेगी चीजें। हाँ वो एक्स्ट्रा Thank you एफर्ट लेना so much, पड़ेगा sir. यूनेस्को साइड से, जैसे आपकी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है बट विद टाइम यू विल लर्न। हाँ वो करना Yeah, पड़ेगा आपको। so thank you. Both of you gave such a detailed answer. I'm sure it will help people. So moving on, since both of you were from chemical background, so basically chemical engineering. So what factors you considered in your mind while going for an optional? सी आई ऑलवेज टेल पीपल, बच्चे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज आपका इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शनल को काफी वेटेज होता है, आपको पढ़ना भी काफी ज्यादा पड़ेगा। तो जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है सस्टेन करना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो 10-12 किताबें होंगी, आप रात रात को पढ़ रहे हो, तो क्या आप पूरा एक साल कमिट करोगे उन किताबों के साथ में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो एक तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए तो शिफ्ट करने का यही रीजन था मेजरली। दूसरी चीज थोड़ा लॉजिस्टिकल फैक्टर्स। लॉजिस्टिक्स में आपका ये आता है कि कितना ओवरलैप है आपका, मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने का कि नहीं है। फिर अगर कुछ ऐसा लिटरेचर का सब्जेक्ट ले लिया जिसका आपको कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, तो अब आप सोच लो कि कैसे लिखेंगे। तो ये सब चीजें साथ में, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को कंपेयर कर पाए बाकी लोगों के कंपेरिजन में, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, बेसिकली एक स्टॉक टेकिंग कर पाए। तो अगर ये सब चीजें आप देखें और उसके बाद फिर थोड़ा मतलब ना, ये भी कर सकते हैं, 2-3 ऑप्शनल को देख लो, सिलेबस वगैरह देख लो, जो आपका इंटरेस्ट जो लग रहा है जैसे भी, और उसको फिर देन यू कैन मूव अहेड विद दैट सब्जेक्ट। आई थिंक सौरभ का आंसर सही है, क्योंकि मेरा ऑप्शन काफी वियर्ड है, पीपल विल नॉट बी एबल टू एसोसिएट विद दैट। जियोलॉजी ऑप्शन है, हार्डली किसी का होगा यहाँ पे, तो उसी का आंसर रहने देता हूँ। Okay, sir, sure. So the next is about note making. हम बोलते हैं कि बहुत important है. So please tell us, firstly, do you prefer, and if yes, how to make them efficiently so that we don't end up making another Lakshmikant for ourselves?
सी मैं तो बहुत लेजी बच्चों में से हूँ, तो मैं नोट्स नहीं बनाती थी। मतलब फॉर प्रीलिम्स तो ये था कि एनसीईआरटी से पढ़ लो या स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वो खुद ही नोट्स की फॉर्म में होती है, तो उन्हीं को हाईलाइट कर करके मल्टीपल रीडिंग 10-15 बार हो गए तो 2 अटेम्प्ट्स में आते आते तो। और फॉर करंट अफेयर्स उसके लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो आप, और उसकी भी नोट्स नहीं बना पाती थी मैं, तो मैं विजन की मैगजीन्स को रेफर किया करती थी। तो ले देके प्री के मेरे कोई नोट्स नहीं थे। बस थोड़े यही थे जो मैथ शॉर्ट्स की बात कर रहे थे, शॉर्टकट्स बना रहे थे, टेबल्स बना रहे थे, वो तो बहुत ही रफ सा आइडिया रहता है, रट्टा मारने का तरीका होता है वो अल्टीमेटली। और उसके बाद नोट्स जो प्रॉपर बने वो बने मेरे मेंस के टाइम पे। और उसमें भी ये था कि मेंस में बिकॉज बहुत कम टाइम था, पहला मेंस था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं। सो मैंने सिलेबस लिया जो डिटेल ब्रेकअप होता है सिलेबस का आपका, यूपीएससी वाला नहीं, प्रॉपर काफी कोचिंग वाले लोग उनको ब्रेकअप करके रखे होते हैं, आईएएस बाबा शायद था, मेरा ये इनसाइट्स था। तो मैंने फिर हर सिलेबस के टॉपिक पे ना ए4 साइज शीट पे वो टॉपिक लिख के 10-15 पॉइंट हर टॉपिक के रेडी कर लिए थे। उसमें मेरे डाटा पॉइंट्स थे, अगर फ्लो चार्ट है वो भी उसी में डाल दिया, अगर मैप है वो भी उसी में डाल दिया। तो ऐसे करके मेरे ए4 शीट्स पे बन गए थे जीएस 1 से लेके जीएस 4 तक के नोट्स, कोई 150-200 पेज के होंगे। तो वो कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है, बट वो मेंस में आंसर लिखने के लिए एक तरीके से गाइडलाइन टाइप्स है। तो यही था मेरा जितना भी था उसमें तो। मेरे मेरे नोट्स मोस्टली एवरनोट पे बनते थे, तो मेरा वही सिस्टम था कि जितने भी कीवर्ड्स मेंशन है आपके सिलेबस में, फॉर एग्जांपल जीएस2 में आरटीआई है, गुड गवर्नेंस है, या सिक्योरिटी इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज में बॉर्डर वाले एरिया क्या है, या इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो इन सारे जितने भी कीवर्ड्स मेंशन है, स्पेशली जीएस4 में जो 15-20 कीवर्ड्स में स्पेशली लिखे हुए हैं, इन सब पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए लाइक 500 to 600 वर्ड्स का। ठीक है, ताकि आप इसके अराउंड कुछ भी क्वेश्चन लिख पाओ। और उसका क्या होना चाहिए कि पहली बात तो डेफिनेशन, अगर कुछ है डेफिनेशन, ठीक है, देन उसका इश्यूज क्या है, जैसे गुड गवर्नेंस मान लो है कि क्यों नहीं हो पा रही, ये पहली बात तो डिफाइन करो, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लिख लो क्या है, 3-4 उसके फैक्टर्स होते हैं, 8 फैक्टर होते हैं शायद, वो कर लो। फिर आप क्यों नहीं हो पा रही है, फिर आप करो कि क्या होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है ना, फिर कोई गुड केस स्टडी है या कोई एग्जाम्पल अच्छा है। ये चीज आपका एक बेसिक स्केलेटल नोट्स होने चाहिए सबके अच्छा चीजों के। फिर बाकी जो डेली आपके करंट अफेयर्स का जो होता है, तो जरूरी नहीं है हर एडिटोरियल से नोट्स बनाओ, रादर आई वुड से कि बहुत कभी बात होता है कि एडिटोरियल ढंग के भी आते हैं, वरना तो आज तो पॉलिटिकल के लिए सवाल रहते हैं। अगर कोई ढंग का आर्टिकल आया है तो उसका जैसे 1500 वर्ड का आर्टिकल आता है, लगभग 1000-1500 का, उसको रिड्यूस करके आपके पास 100 वर्ड का होना चाहिए उसके नोट्स पास, कि वो आर्टिकल बेसिकली क्रक्स कहना क्या चाह रहा है। वो मुश्किल से 100 वर्ड की चीजें होती हैं और कुछ नहीं होता उसमें। वो 100 वर्ड्स की चीजें लिख दो, फिर बाद में सब्सिक्वेंट रिवीजन में अपने नोट्स को ट्रिम डाउन करते रहो। दैट हियर यहाँ पे एवरनोट की हेल्प आती है। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग ऑनलाइन नोट्स, यू कैन जस्ट ट्रिम इट डाउन, कट इट डाउन, सिर्फ कीवर्ड्स होने चाहिए। तो एट द एंड जब आपके पास मेल्स के टाइम पे आएगा, तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए भाई, 100 पेज, 100 पेज की, उसके बाद सारे का 2-2 पेज के नोट्स होने चाहिए, बस कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए। मतलब जैसे वुमेन के बारे में कोई है तो, और वुमेन इन वर्क प्लेस, तो आपका ग्लास सीलिंग कीवर्ड होना चाहिए वहां पे, क्या ना, बिकॉज इट्स वेरी स्पेसिफिक कीवर्ड जो कि आप यूज करना ही करना है आपको, क्योंकि वो आपको अच्छा नंबर देगा, है ना। इस टाइप के, जैसे मान लो हो गया गुड गवर्नेंस के बोल रहा था ना, तो आरटीआई इज द मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस बोला जाता है, तो ये सारे कोड्स आपको पता होने चाहिए। तो ये सब चीजें अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट करो। बाकी जो बेसिक इश्यूज हैं वो तो आपको पढ़ते पढ़ते अंदाजा आने ही लगेगा कि यार देखो इंडिया का अफगानिस्तान से क्या प्रॉब्लम है, तो बेसिक प्रॉब्लम आपको पता ही होना चाहिए कि क्या है वो, कुछ नई नोट लिखने की बात नहीं है ना, वो एक बेसिक बन जाता है। आपके पास फोकस होना चाहिए कीवर्ड्स का, अच्छे फ्रेजेस का, अच्छी टैगलाइंस का, इस टाइप की बातों का। मतलब जैसे आईआर के कोई भी क्वेश्चन है तो एस जयशंकर बहुत कुछ बातें कह चुके हैं, यू डोंट नीड टू मेंशन हिज नेम, बट आप उसके बारे में कह सकते हो। जैसे इंडियन ओशन के बारे में कहा, इट्स अ सर्किल ऑफ concentric सर्कल्स विद इंडिया एट द सेंटर, ऐसे करके बोला है उन्होंने, कुछ ऐसी अच्छी सी बात थी इंडियन ओशन के अराउंड। तो ये आप लिख दो कहीं पे इंडियन ओशन के अराउंड में, तो ये अच्छी बातें हो जाएंगी, है ना। तो इस टाइप की चीजें करनी है आपको नोट्स में अपने। बाकी मैंने नोट्स भी सारे Okay. शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम पे, आप किसी को Yeah, देखना yeah. हो देख ले वहां जाके। Thank you so much for that, sir. So moving on, next comes the loaded question because it's about current affairs and we know that they play a very important role in UPSC. So please guide us through that. You know, what should be the strategy for you for current affairs because it has got no end. हाँ यार, जितना मुझे लगता है यूपीएससी में जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या छोड़ना है। तो करंट अफेयर्स में ये कि बहुत ओवर नहीं करना है जिस बिकॉज की उसका कोई एंड नहीं है, तो ये बहुत ही पहले दिमाग में क्लियर रखो कि क्या क्या पढ़ना है।
तो मैं एक तो न्यूज़पेपर हमेशा सबको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम का थोड़ा आइडिया कम है मुझे, लेकिन इंग्लिश मीडियम से तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर, दो दो भी मत पढ़ो, ये बच्चे करते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बैठ के। तो वो इंटरव्यू के टाइम की बातें होती है, पहले की नहीं करना है। और उसके बाद या तो आप नोट्स बना लो अगर बहुत ही डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो आप, और अगर नहीं मतलब उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर उसमें ये है कि जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है किसी भी एक अच्छी कोचिंग की उठा लो और उनसे पढ़ लो, बिकॉज कोई और आपके लिए काम करके रखा हुआ है ऑलरेडी, आपको सिर्फ यूटिलाइज करना है उस चीज को। और 100 पेजेस के राउंड होती हैं, आप 3-4 दिन में कवर कर सकते हैं, और पढ़ते रहो उनको, मतलब जैसे ही मंथ के एंड में ज्यादा उसको डिले मत करो क्योंकि फिर बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएंगे। और जब प्रीलिम्स का डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे फरवरी से या मार्च से, तो वो 12 बुकलेट्स एक तरीके से आपकी 12 किताबों की तरह हैं। जैसे आप अपना स्टैटिक रिवाइज करते हो, एक राउंड अगर स्टैटिक का कर रहे हो तो एक राउंड फिर उन बुकलेट्स का भी रिवाइज करो। तो रिवीजन पे बराबर फोकस करना है उन चीजों का। और आखिर में आके पीटी 365 आती है, वैसे वो मंथली का ही एक तरीके से कंपाइलेशन होता है, बच्चों को भी रेफर करते हैं, पर मुझे मेरा मानना ये है कि कॉन्टिन्यूसली करते रहें आप, बाद के लिए ना छोड़े उस चीज को। Right. मोरलेस Yes, यही है कि आप डेली अपना न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर के नोट्स बन सकते हो तो बन पाए। स्पेशली अगर फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से है तो कोई फैक्ट आया है, कोई इवेंट आया है तो उसका जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। कोई नया कबूतर निकल आया कहीं पे या नई छिपकली किसी ने कर ली डिस्कवर, तो वो देख लो भाई, आते जाते वेस्टर्न घाट्स में रोज नोट कुछ ना कुछ, तो यू शुड बी नोइंग दैट। और एक्चुअली दे जनरली आस्क दिस क्वेश्चन कि रिसेंटली दिस हैज बीन फाउंड वेयर, कहाँ पे पाया गया, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग। और फिर आपका बेसिक क्या है कि देखो, आप जब नोट्स का से ज्यादा क्या है कि आप उसका क्रक्स समझो कि वो क्या कह रहा है। तो पूरे नोट्स का नोट्स नहीं बना, मतलब पूरे आर्टिकल का, हर आर्टिकल का नोट्स नहीं बनाना है आपको। अगर आपको पता है कि आपका ये जैसा मतलब एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, अब जब आई थी तो लगातार डेली आर्टिकल आते थे उसमें, तो वो डेली आर्टिकल नई चीज नहीं कहते थे, वो एक ही बात को अलग अलग डायमेंशन से कहते थे। तो आपका क्या होता था, एक बार बेसिक नोट बन गया कि फीचर्स ऑफ एनईपी, अब उसमें बस कमेंट्री हो रही है अगल बगल से कि ये अच्छा है वो बुरा है, तो आपको बस एक एक लाइन के आर्टिकल लिखने हैं, इसका ये भी पॉइंट हो सकता है, इसमें ये भी पॉइंट हो सकता है, कि एक पॉइंट, बस इतना करना है। तो हर चीज का नोट बनाने के ऐसे भागा दौड़ी नहीं करनी है आपको। जो आपको लग रहा है कि ये वैल्यू एडिशन हो रहा है इसमें, वो उसके नोट्स बनाइए। और करंट अफेयर का जो वही बुकलेट्स का जो बोला है सदफ ने, तो बुकलेट मैं भी करता था, मैं तो विजन के पढ़तू करता था, मतलब मंथली वाला। तो उसका मेरे ऐसे प्लान होता था कि जैसे कितने होते हैं, 80 पेज होते हैं उसमें, अच्छे ढंग के पेज होते हैं 80, 10 पेज होते हैं उसके न्यूज एंड शॉर्ट के, वो फालतू की चीज होती है, वो भी पढ़ लेना, प्रीलिम्स के लिए वो पढ़ा जाता है। तो 80 पेज को मैं डिफाइन करता था, 4 दिन में पढ़ लेना उसको, 20 पेज डेली, ताकि वो पूरा, कुछ लोग का होता है कि दो रोज 2-2 पेज पढ़ेंगे, मेरा होता था कि जल्दी करके खत्म करो कि यार एक चीज खत्म हो जाए। और क्या हो गया, मैं क्या करता था कि उसके मैं उसके भी नोट्स बनाता था अपने एवर नोट में, ताकि मैं दोबारा ना पढ़ना पड़े मुझे वो चीज। क्योंकि उसका ना, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप देखोगे कि एक ही इशू 2-4 महीने चलता रहता है, मतलब सीए है, वो बहुत दिन चल रहा था, तो वो हर बार विजन उसको पूरा एक्सप्लेन करता है कि इस क्या है, कैसे कैसे। तो पूरा पढ़ना भी नहीं होता है, आपके 20 पेज ना ड्रॉप बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आप थोड़ा कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हो। तो कुछ कुछ ही चीजें नहीं आती, फिर बाद में होते हैं हाँ ये तो पता है, चलो हटो, ये सब बातें तो आती है, आगे की बात देखो क्या है, वो हो जाएगा। तो वही जो नए पॉइंट आएंगे अपने नोट्स पे डाल लो वो चीज, तो आपके पास बाद में कुछ बैकलॉग रहेगा ही नहीं। बाकी आप डिपेंड कर लो, जब 365 आएगी, पीटी 365, उसको घोट के पी जाओ कि क्या है, नई नई चीजें है ना, उसमें फिर अपने नोट्स बनाते जा रहे हो, वो भी रिवाइज कर लो, बस हो जाएगा। Okay, sir. और अल्टीमेटली। और न्यूज़पेपर मैं रिकमेंड करूंगा, Yeah. इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करो, और हिंदू में आजकल ज्यादा थोड़ा अजीब सा हो गया है आजकल। मैं तो टाइम्स ऑफ Okay. इंडिया पढ़ रही हूँ आजकल बस। वो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ आजकल, तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ न्यूज़पेपर। तो बताओ। और साथ में अगर बच्चे पीएसआईआर वाले हैं तो देखो, हाँ पहले पहले मत लिखना, आईआर के सेक्शन में ना काफी सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स आपको कोट्स करने पड़ते हैं, कि जैसे जयशंकर जी का हो गया, राजा मोहन जी है, सुहासिनी हैदर है। तो बहुत फास्ट चेंज होता है आईआर में, तो जो प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में 3 महीने होंगे ना, उसी के बस खाली कोर्स करना, क्योंकि वही है 15 अगस्त को जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, 14 सितंबर को आते थे चीजें बिल्कुल उलट हो गई थी। तो कोई फायदा नहीं है उस पहले से इतना ज्यादा दिमाग लगाने का कि भाई आर्टिकल सेव करना, क्योंकि मैं करती हाँ थी तो मुझे कुछ काम नहीं आए थे। हाँ, सही कह रहे हो। Okay, so moving on, since both of you scored really well in your essays, so please guide us through that also, keeping in mind the beginners. दिव्यांशु सर वुड गो फर्स्ट। यार देखो, ऐसे का क्या है, पहली बात तो ना, ऐसे में अगर तुम पढ़ रहे हो ढंग से, तुम पहले ही बहुत लोगों से आगे हो, बिकॉज आधी जनता तो पढ़ती ही नहीं ऐसे के लिए, है ना। हाँ। उनको लगता है हम जीएस पढ़ के जा रहे हैं, उसी में लिख देंगे जाके, एक्सटेंडेड जीएस आंसर समझते हैं लोग ऐसे को। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसे की साइकोलॉजी में हमेशा बोलता हूँ, ऐसे की साइकोलॉजी समझो कि वो तुमसे वो 3 घंटे में
2400 वर्ड लिखने को बोल रहा है, जीएस में 3 घंटे में 4000 वर्ड लिखने होते हैं, 60% लिखना है आपको बस, ठीक है। आपको 8 टॉपिक में से एनी 2 टॉपिक लिखने हैं, जीएस में 20 में से 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको, इतना लीनियंट हो रहा है अगर, फिर आपको 12 पेज दे रहा है लिखने को, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक अच्छा इंग्लिश वाला ऐसे लिखोगे, मतलब हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, मतलब उसमें आप एक तो पहली बात है कुछ रैंडम शॉर्टकट नहीं लिखोगे, कोई भी कोई डायग्राम नहीं बनाना, प्रॉपर इंग्लिश लिटरेचर वाली इंग्लिश लिखनी है, वहां पर ढंग से इंग्लिश लिखोगे, आर्टिकुलेशन स्किल्स दिखानी है, और वो एक दिन में नहीं आती है। उसके लिए आपको अपने जो नोट्स छोड़ो, जो आर्टिकल्स आते हैं ना न्यूज़पेपर में, सी राजा मोहन के आ गए, सुभाष हैदर के, किसी के भी अच्छे आते हैं ना, आप उनका वो तो समझो ही समझो कि वो क्या कह रहे हैं, आपको ये भी देखो वो बात को किस तरीके से कह रहे हैं, कितना अच्छे फ्लावरी लैंग्वेज में, या कितनी अच्छी आर्टिकुलेशन स्किल्स है उनकी। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, तब आपको अपनी इंग्लिश सुधरेगी कि आप अच्छा ऐसे भी इस बात को ही ऐसे लिख सकते थे, है ना, ये एक बड़ा हो जाएगा। फिर आपके वही है कि जीएस वाले टॉपिक्स पे आप वही 20-25 टॉपिक होते हैं, उन पे आप अपने नोट्स बना लो, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, जुडिशरी, वुमेन, ये सब, यही सब के अराउंड पूछते रहते हैं, सब बातें, पैट्रियार्की हो गई, सब बातें। तो आप इन पे नोट्स होने चाहिए, उस पे वैल्यू एडेड नोट्स होने चाहिए कि कोई नया जजमेंट आया है, कोई स्टैट्स वगैरह आएंगे, ये सब बात, ये हो गया। फिर आपका फिलोसफिकल एसेस के लिए क्या करना है कि आपको कोट्स खूब याद होना चाहिए, कि कोट्स जो होते हैं अच्छे फेमस, बिकॉज दे हेल्प यू अ लॉट टू मेक अ इंटरलिंकेज बिटवीन द 2 पैराग्राफ। एक कोट लिखो, उसका एक्सप्लेन करो, उसका एग्जाम्पल दो, फिर दूसरा कोट लिखो, एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो, इस टाइप का, ठीक है। और जीएस कोड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जो भी बातें होती हैं उनकी, एटीट्यूड एटीट्यूड बातें कभी कभी आ जाती हैं, सब चीजें। देन मैं वो नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता था बहुत, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाती है कोट करने में। कोई सिंपल सी बात ही तुम कह रहे हो, उसको थोड़ा अच्छी कोट करके, किसी बुक का कोट करके कह दो, तो उसकी वेटेज बढ़ जाता है उस बात को कहने का। ऐसे वाला बड़ी बड़ी सिंपल सी लाइन है कि एक बुक है ना, सेपियंस बुक है, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड, युवल नोरा, उसमें बोलता है वो, मैन थिंक्स इन स्टोरीज। अब यही 3 ट्रिगिंग लाइन है, आप किसी को बोलते हो कि अब इसी से आप रिलीजन का ओरिजिन ढूंढ सकते हो, कि रिलीजन क्या है, सारी वो स्टोरीज ही तो है, इस्लाम हो, हिंदुज्म, सब क्या है, बंच ऑफ स्टोरीज है। तो अब यही बात को कहना, सिंपल एक बात कहो, फिर उसको कह दो कि युवल नोआ हरारी इन दिस बुक हैज कोटेड दिस से दिस, तो वही बात अच्छी हो जाएगी। यही आपको डिफरेंशिएट करेगा जीएस के आंसर में और ऐसे में। ऐसे में आपको थोड़ा एक ना, वो जैसे प्रॉपर ऐसे जो होते हैं उसमें तो आपको फुटनोट देने पड़ते हैं कि आप रेफरेंस डालो, यहाँ पे वो सब तो नहीं करना, बट आपके दिमाग में रेफरेंस होना चाहिए कि आप कहाँ से लिख रहे हो इस बात को। फिर आप जो बोल रहे हो वो बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, कि आप ही नहीं बोल रहे, बंदा पीएचडी हिस्ट्री में है वो बोल रहा है ये बात, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर क्या बोला, फिर आपको हाँ ऐसे लिखने हैं, ज्ञान बहुत लोगों को पता होता है, बट यू नीड टू राइट योर एसेज, कम से कम 20-25 ऐसे लिख के जाओ पहले, तब आपको एक फ्लो आएगा लिखने का। बाकी आप अपने टॉपर्स के आंसर्स देखो, ऐसे देखो, उससे आपको फ्लो दिखेगा कैसे लिखना है। हाँ, कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे हैं कि एससी के टॉपिक्स की लिस्ट कहाँ मिलेगी। देखो, हमारे पूर्वज बहुत अच्छा काम करके गए थे। एक अनुदीप दूरी शेट्टी सर है, और बस उनके बस बस। उनके ब्लॉग को रेफर करना, उन्होंने काफी एससी की लिस्ट डाली हुई है, थीम्स जो डाले हुए हैं, और वही बोल रहे थे। और मैं तो सिर्फ 3 स्टेज, सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, 3 स्टेज तो बिगिनर्स के लिए। पहले तो आप फोल्डर मटेरियल रेडी कर लो, 2-2 पेज का, हर उसके ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर अपने एग्जाम्पल्स के साथ में कंपैरिजन डाटा जो भी है आपका। दूसरी बात, आप टॉपर्स के पहले टॉपर्स के एसेस को रेफर करो, सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ को कनेक्ट कर रहे हैं, इंट्रो कंक्लूजन भी मैटर करता है कि कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। लास्टली आई बिलीव टॉपिक सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही बात है, आई थिंक दिव्यांशु सर ने स्किप किया ये पार्ट। दिव्यांशु सर की नॉलेज थी कि ऐसे में ना पॉजिटिव और नेगेटिव टॉपिक्स होते हैं, तो हमेशा एक ऐसा पॉजिटिव टॉपिक पिक करो जो थोड़ा फील गुड फैक्टर लेके आए, नेगेटिव की साइड में मत जाना। क्योंकि जैसे मुझे याद है, मैंने पेट्रियार्की पे ऐसे लिखा, ग्रुप पे डिस्कशन भी चल रहा था कि पेट्रियार्की पे जिसने लिखा उनके कम नंबर आया। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे उसी में कम आए होंगे, बट मैं ये बोल रही हूँ कि वो, आप पेट्रियार्की में कितना भी बचो, आप किसी ना किसी की बुराई कर ही दोगे। आपको नहीं पता कि आपका ऐसे चेक 58 ईयर्स का एक पुराना बंदा कर रहा है या 22 ईयर का कोई नया बंदा कर रहा है, तो मतलब वो आप चेंज नहीं कर सकते ना, बायसेस जो भी है आपके। तो इसलिए बी वेरी कॉशियस, बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन यू पिक दैट टॉपिक। तो थोड़ा ट्राई करना पॉजिटिव बायस वाला टॉपिक लेने का। Okay. So, moving on, now let's talk about GS4, that is ethics. And you know, most of the aspirants they feel कि यार ये तो easy है क्योंकि situational है, life के साथ match होता है. But then obviously it's a game changer. So how would you like? What would be your opinion on that?
एससे और एथिक्स ऑलमोस्ट सेम ही जाते हैं। एथिक्स में भी हम लोग ये करते हैं, कीवर्ड्स लेते हैं जो आपके 50-60 होते हैं, जैसे कुछ भी आपका सिंसियरिटी, प्रोबिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कुछ भी आप ले लीजिए, और वही 4-4, 5-5 पॉइंट्स आप रेडी कीजिए। डेफिनेशन होनी चाहिए प्रॉपर, आपको पता है ऑनेस्टी क्या होती है, बट आप अगर उसे अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो वो कोई आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन तो होती है, बट उतने एथिकल हम होते नहीं है ना उसको एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा एक बुकिश डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद एग्जाम्पल अपनी लाइफ से हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो किसी दूसरे इंसान की, कोई भी पर्सनालिटी की फेमस लाइफ से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका कोई भी कोट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसी करती थी कि आखिर में कंक्लूड करके बड़ा बोल्ड लेटर्स में कोट वोट भी लिख के आती थी, बढ़िया सजा सजा के। तो वो जो भी आपको मन करे आप कीजिए। उसमें फ्लो चार्ट्स कर सकते हैं, कुछ करंट अफेयर में कुछ हुआ है, जैसे कोविड के टाइम पे पुलिस ने काफी अच्छा पे नोट्स होने चाहिए जब आंसर आएगा आपका, जो जनरल आंसर्स वाला पार्ट होता है, ए पार्ट जो होता है, तो उसमें आप अपना वो जो कीवर्ड वाला पार्ट है वो लिखिए लिखिए, साथ में जो पूछा है उसको एक्सप्लेन कर दो, या किसी भी प्रोस कॉन्स जो भी आपसे पूछा गया है वो कर दो। केस स्टडीज के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जैसे एसए के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैंने जो रेफर किया था वो एक विजन आईएएस की 55 केस स्टडीज की बुकलेट आती है, उसमें बहुत ही डाइवर्स केस स्टडीज उन्होंने दी हुई है, तो मैं वो सब पढ़ती थी। सॉल्व करने का अप्रोच डाइवर्स था, केस स्टडीज भी डाइवर्स थी। आई थिंक उसने मुझे काफी हेल्प किया, तो बच्चों को भी रिकमेंड करना चाहूंगी। और उसके बाद फिर आप अपना मतलब जीरोक्स शॉप से ले लेना, ऐसा उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जगह बैठती रहती है, करोल बाग और ओआरएन में। और उसके बाद प्रैक्टिस आप अपने आप से कीजिए, ऐसे कोई 20-25 केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेंगी, वो एक टाइम के साथ अंदर अंदर अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो पढ़ने का क्या है ना, वो तो सौरभ ने बहुत अच्छे से बता दिया किस टाइप से पढ़ना है। मैं जो फोकस करूंगा कि आपको लिखना कैसे है उसको, क्योंकि ना GS4 इज द मोस्ट लेंथीएस्ट पेपर तो सारे पेपर। और आप ये सोच के रखो कि आप GS4 कब लिख रहे होगे। आप फर्स्ट डे ऐसे लिख चुके होगे, दूसरे दिन GS1 GS2 लिख चुके होगे, तीसरे दिन का शिफ्ट 1 में GS3 लिख चुके होगे। आपके हाथ नम हो चुके होंगे इतने दिनों में लिखते लिखते, कभी किसी ने लिखा भी नहीं होगा एक साथ 6-6 घंटा। तो मुझे ये लगा एग्जाम हॉल की प्रॉब्लम होती है कि आप जब लिखने बैठोगे ना वहां पे, तो पेपर के एंड आते आते तक आपके हाथ में एक्चुअली नम हो जाएंगे लिखते लिखते। तो आपकी राइटिंग स्पीड तेज होनी चाहिए GS4। फिर जिसको लगता है GS4 आसान है वो सुनने में आसान लगता है, ऐसा ही आस्क यू हाउ डिफाइन हैप्पीनेस, एक अच्छी डेफिनेशन नहीं दे पाओगे, है ना। इसलिए यू शुड बी वेरी थॉरो विद द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन अच्छे कीवर्ड्स के साथ। देन आपके कुछ कुछ इथिकल वाले कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मतलब कंपैशन हो गया, या फिर हो गया कॉग्निटिव डिसोनेंस, सोशल जस्टिस। इस टाइप के ना अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं जो जो कि बेसिक तो बात वही कह रहे हैं, तुम भी वही कहोगे बात, बट वो एक अच्छे वर्ड में कह दो ना, इथिक्स अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो होते हैं, तो उसमें अच्छी चीजें आ जाएंगी सुनने। फिर आप यू शुड बी वेरी थॉरो विद द एग्जांपल्स, काफी एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप यू शुड बी मेकिंग नोट ऑफ द एग्जांपल्स, जो भी नए नए एग्जांपल्स आ रहे हैं चीजों के। जैसे कोविड के टाइम से बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल आए हैं, कंपैशन के, रिलीजियस हार्मनी के, इधर उधर के, मूविंग मतलब मुझे तो ब्यूरोक्रेसी से भी आएंगे, पब्लिक सर्विस में वॉकिंग एक्स्ट्रा माइल, डीएम लोगों ने कितने इनिशिएटिव लिए हैं जो कि उनकी ड्यूटी आज के नहीं है फिर भी उन्हें किए हैं। मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ इन द ड्यूटी। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कोच हो सज्जन अच्छा एग्जाम्पल कहाँ पे। देन ये सब करने के बाद ना पढ़ाई का कम होता है, आप लिखने बैठ जाओ आंसर, खूब आंसर लिखो इसमें, तभी आपको समझ में आएगा कि जो पढ़ तो रहे हो। मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आ जाता है कि इम्पार्शियलिटी इन पब्लिक सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू, एक्सप्लेन। अब बिल्कुल कह दिया, ये तो सही बात है, इसमें क्या बात करूं, जो अच्छी बात है, सही कह रहा है ये बात। लेकिन आपको उसको भी 150 वर्ड लिखने हैं, अच्छे एग्जाम्पल देके, इम्पार्शियलिटी की डेफिनेशन देके। कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको आंसर पता ही नहीं है इसका, किस तरह से GS1 2 3 में आ सकता है कि पता ही नहीं इसमें क्या लिखूं मैं यार, कोई नई चीज बोल दी। इसमें आपको सब पता होंगे आंसर। द थिंग इज हाउ यू आर आर्टिकुलेटिंग इट। इसीलिए GS4 के नंबर भी इसी टाइप से आते हैं, एक रेंज में ही नंबर आते हैं, बहुत हाई लो नहीं जाते जितने लोगों की। Right. So, moving on, so we would like to know about your interview experience. सदा भाई इसने फोड़ा इंटरव्यू मेरे तो। नहीं यार, थोड़ा पैनल का भी रहता है वो तो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखिए अच्छा ही था। हमें सबको दिव्यांश सर से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि सर बहुत एक्टिव रहते थे ग्रुप पे, बढ़िया पढ़ के बैठे थे नोट्स बना के। लेकिन हाँ, ऑन अ सीरियस नोट ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करनी जरूरी है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट, कि बच्चे उतनी प्रिपरेशन करके जाते नहीं है, जबकि बहुत ही आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो।
तो क्योंकि 3 महीने थे हमारे पास उस टाइम, और ज्यादा बढ़ गया था पोस्टपोनमेंट की वजह से, तो बहुत ही फुर्सत से हमने तैयारी की थी। और 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकती हूँ। पहला स्टैटिक पार्ट आपका रहता है कि जो आपकी कीवर्ड्स हैं, जो आपके डेफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं, तो जैसे मैं रुड़की से हूँ या पहले अमरोहा में हम लोग रहते थे, जो भी चीजें हैं, तो वो सब कीवर्ड्स आपको गूगल कीजिए और उनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप रुड़की में ये कि अभी कुंभ मेला हुआ था उस टाइम पे, हरिद्वार है, क्यों होता है, ये सब चीजें, तो वो गूगल आप विकिपीडिया से वो सब कुछ एक डायरी में या किसी भी नोटबुक में ये सब आपको आना चाहिए। इंटरव्यू की डेट पे क्या हुआ था, कौन मरा था, कौन पैदा हुआ था, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे क्या सिमिलैरिटी, क्या कोइंसिडेंसेस है। तो ये तो थ्योरी, मतलब ये तो वो क्वेश्चन हैं जो फैक्चुअल होते हैं, आप प्रिपेयर करेंगे, ये स्टैटिक पार्ट हो गया। लेकिन ये इतना ट्रिकी नहीं है, क्योंकि इसको आप मना भी कर सकते हैं एक बार कि नहीं आता है तो नहीं आता है, वैसे अगर आप जवाब दे दो ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा होता है डायनामिक पार्ट। डायनामिक इज तुम्हारा जो प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन है या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। उसके लिए क्या है कि मैंने ये किया था, पिछले साल के जो टॉपर्स थे उनकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, पिछले साल के बच्चों की सबकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, काफी कोचिंग्स उसकी कंपाइलेशन जो है रिलीज करती है मार्केट में। तो मैंने वो 400 लगभग लोगों की ट्रांसक्रिप्ट थी अपनी प्रोफाइल से मैच की, जिन लोगों का सेम था, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग से कोई जो आ रहा है तो उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए, कोई यूपी से आ रहा है तो क्या क्वेश्चन, वुमेन स्पेसिफिक, माइनॉरिटी स्पेसिफिक, तो वो ऐसे करके मैंने 600 क्वेश्चन लगभग का अपना क्वेश्चन बैंक खुद से क्रिएट कर लिया था। काफी लोग कोचिंग के क्वेश्चन को रेफर करते हैं, वो भी मैंने लिए थे, लेकिन जनरली ये कि ये मेरा खुद का था, मुझे पता था इसमें से कम 50-60% क्वेश्चन फंस ही जाएंगे, बाकी तो फिर ऊपर वाला मालिक है, ऐसे वाला था। तो अपने साइड से हम प्रीएम्प्ट करते हुए चलेंगे। तो मैंने वो सब क्वेश्चंस नोट डाउन किए, और उसके बाद क्योंकि टाइम था तो मैं हर क्वेश्चन के साथ 15-20 मिनट बैठती थी, सोचती थी कि अच्छा मैं क्या सोचती हूँ इस चीज के बारे में, मेरा एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन जब हम सोचते हैं ना किसी दूसरे को समझाने के हिसाब से, तो हमें उतना नहीं आता होता है। तो इस तरीके से सेल्फ डिस्कवरी भी तुम करते हो टाइम के साथ साथ, जब तुम सोचते हो इन इश्यूज के बारे में, चाहे वो वुमेन स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी रीजन स्पेसिफिक हो। तो आई थिंक ये 2 चीजें मेरी प्रिपरेशन का एक मेन स्टे रहा। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज हमारे होते हैं, तो वो आप मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस के लिए दीजिए। लेकिन यहाँ पे आई वुड एडवाइस कॉशन, थोड़ा मॉडरेट रहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस जीरो करवा लिया है। तो उसमें 5-6 मॉक इंटरव्यूज बहुत से हुआ, आई थिंक यू आर गुड टू गो अपने पार्ट पे। यार Okay. मोरलेस यही है। ये आपने यू हैव हर्ड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, दिस इज द बेस्ट थिंग अप्रोच क्या कैन बी डन। मैं क्या बोलूं इसमें, मेरे खुद दिव्यांश की ने नहीं है, बहुत मैं कि दूसरों की क्या बोलूं। दिए थे। अरे मैंने दिए थे यार, गलत किया मैंने, क्या बोलूं। खैर अब ऑप्शन नहीं मिलेगा दोबारा देने का, लेकिन मैं कुछ करता अगर अगली अटेम्प्ट देना होता तो। खैर ठीक है, चलो हो गया। Okay, sir. So, coming to the very last question, since both of you are officers now and you will have power in your hands, so what is that core area, जहाँ पे you feel like यहाँ पे तो मुझे काम उससे पहले ना करना ही है? एक बार बहुत बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं सदफ से कि व्हाई शी हैज चोजन आईएफएस ओवर आईएएस। मेरे ग्रुप पे मुझसे पूछ रहे हैं कि यार उनकी तो रैंक 23rd है, उनको आईएएस नहीं मिला। मैं कहा भाई उसको आईएफएस चाहिए था, इसलिए उसने आईएफएस किया। तो यार एक बार ये बता दो आप सबको। Please answer, ma'am. सी आईएफएस हमेशा से पहली चॉइस थी, क्योंकि बताया मैंने, हॉबीज भी बचपन से यही रही हैं कि एक तो ट्रैवलिंग वाला पार्ट था, एक रीडिंग वाली चीज थी, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल सर्किल्स आपके, जिसमें आप बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अपने मतलब बातों से आप अपना इंटरेस्ट फर्दर कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो क्या अच्छा चाहिए आपको जिंदगी में। तो हमेशा से Yeah. और मेजरली ये है कि आईएफएस में क्या है, आप कोई भी करियर पाथ चूज कीजिए। देखिए मैंने तो काम करके देख लिया, मुझे समझ में आ गया है कि आप अगर 25-30 साल किसी एक जॉब में नहीं स्पेंड कर सकते, आपको लग रहा है आप बर्न आउट हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, या आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। तो मुझे आईएफएस चूज करने की ये रीजन था कि एक तो ये काम मुझे बहुत पसंद है, हमेशा अच्छी जगह, मतलब पढ़ने के लिए हम बहुत नई नई चीजें मिलती रहेंगी, रिपोर्ट, डिप्लोमेसी, बात करना, अपने इंटरेस्ट को फर्दर करना। इट्स लाइक ऑल एवरी डे इज ओलंपिक्स, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से। तो अरे दैट वाज द मोटिवेशन। उसके अलावा तो बाकी तो पर्क्स, ये वो सब चीजें वो भी होती हैं, मैं आई वुड नॉट डिनाई, लेकिन मेजरली ये चीज थी। बढ़िया, 5 स्टार जिंदगी Yeah. जिएगी यार, मस्त होते हैं जिंदगी। लेटरल एंट्री लेंगे दिव्यांशु सर, सर की सेकंड प्रेफरेंस आई थी, सेकंड प्रेफरेंस तुम्हारी। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट थी वो, लेकिन बाद में चेंज हो गई वो। खैर ठीक है। Okay, हाँ, so you had the प्रायोरिटीज के बारे में personal आप पूछ bias. रहे थे। हाँ, Yes, ma'am. प्रायोरिटीज आई थिंक मेरे केस में तो ये रहने वाला है कि सबसे हर किसी
यूपीएससी का मोस्टली ना हम लोग देखते हैं जब आईएफएस को, तो हम ये देखते हैं कि बड़ा यूरोप में रह रहे हैं, बढ़िया ऐश कर रहे हैं, ये सब चीजें। बट लेट मी टेल यू, जो मोस्ट सॉट आफ्टर पोस्टिंग्स होती है वो हमारी नेबरहुड पोस्टिंग्स होती हैं, क्योंकि इंडिया रीजनल पावर है। तो इंडिया का जितना क्लाउड यहाँ पे है आसपास, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका में ना, उतना ज्यादा डिप्लोमेसी हम कहीं बाहर नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे करने लग गए हैं। तो आई फील कि इस उस एरिया में काम करना एक रीजनल टाइज के केस में, और अभी तो हम बढ़ाते भी जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया हो गया, मतलब एक्सटेंडेड नेबरहुड जो हमारा है, चाहे गल्फ मुल्क हो गया, चाहे इधर साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो आई थिंक दिस इज वन एरिया दैट आई वुड एक्चुअली लाइक टू सर्व इन। Okay. What about you, sir? मेरा तो खैर लोकल ही है, तो आई विल से माय मेन फोकस विल बी ऑन द व्हाट आई थिंक अभी तो हेल्थ केयर, education, and in later times I think I want to move to the center and some work around education. Or ground level is the problem. At a higher level it's good, it's better than the ground level, but at the lower level it requires a major shift, and COVID has been a great testimony to that, where we are lacking. So healthcare has to be the focus, and education again, because these things actually ना this ये question मेरे से पूछा गया था in the interview also. So I gave a very good line also, जो कि मुझे लगा था यार बहुत अच्छी लाइन बोली कि like healthcare will secure your present, but education will secure your future. So that is the best way to go forward. And these two are the most biggest demands of the public also. तो इस पे फोकस ऑब्वियसली रहेगा, रिस्पेक्टिव जहां भी मुझे कैडर मिले, जो भी मिले। एंड फ्यूचर में देखते हैं फिर। एजुकेशन इज समथिंग दैट आई टोटली एसोसिएट विद, मैंने वही किया है अभी तक लाइफ में। तो आई थिंक थोड़ा सॉफ्ट हार्टेडनेस उसकी तरफ बिल्कुल रहेगी। और फाइनेंस के लिए, बिकॉज आई थिंक द एज इंडिया ग्रोज एज अ डिप्लोमेटिक पावर, एज अ वर्ल्ड पावर, तो जो फाइनेंशियल क्लाउड ऑफ इंडिया का होगा वो भी इंप्रूव होता रहेगा। जस्ट लुक एट द सेंसेक्स ऑफ क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट रोल एज अ फैसिलिटेटर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द नियर फ्यूचर। तो उसके लिए जो स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस और ये सब चीजें करना ना, इट्स इंपॉर्टेंट। फिर बाकी हमारे आईएफएस लोग हेल्प करेंगे एफडीए लाने में, तो हम लोग आईएएस आईएफएस तुम मिलकर काम पेट्रोल डीजल करेंगे। सस्ता करवा देना बस। नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, खत्म कर देंगे उसको। आप लोग सब सिर्फ ग्रीन टैक्सेस एनर्जी, चाहिए। ग्रीन एनर्जी। Okay, so with this, we are done with the questions. Any parting message you would like to give our aspirants? सी, मुझे लगता है बिल्कुल, अगर बेसिक से मैं स्टार्ट करूँ तो ड्रीम बिग, पहली बात तो ये, बिकॉज सेम चीज ना, छोटे सपने क्यों देखने हैं, वो तो नॉर्मल रियलिटी में तुम जी सकते हो। तो ड्रीम बिग, अच्छे से प्लानिंग करके चलो लाइफ में। कोई भी चीज मतलब डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, लेकिन एक प्लानिंग के साथ भी चलते रहो कि हाँ हमें एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। बिकॉज ऐसे सुबह को सो रहे हैं, शाम को सुबह उठ रहे हैं, शाम को सो रहे हैं, जो भी है वो दैट लाइफ नॉट वर्थ लिविंग। तो एस्पायर अच्छी चीजों के लिए, उनको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कीजिए। और अल्टीमेटली मुझे तो ये लगता है अब तक भी, इस सक्सेस के बाद भी और इससे पहले भी, कि आप अगर किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर देते हैं तो सक्सेस आपको मिलती ही है। बट अगर नहीं भी मिलती है तो आपको कुछ ना कुछ बेटर उस चीज से मिल जाता है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। बाकी तो ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू। मेरा भी यही, देखो फर्स्ट इज दैट ड्रीम बिग। हाँ बिल्कुल सही बात है कि एक बड़ी चीज करो। आईएएस इसलिए करना है क्योंकि दुनिया का सबसे टफ चीज है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, सेकेंडली क्या है, यू शुड नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ बोला जाता है, जैसे बहुत फेमस कोट है एरिस्टोटल का। यू नो सेल्फ मतलब कि योर वीकनेसेस, योर इंटरेस्ट एरिया, डू यू रियली वांट टू डू दिस और नॉट। ये नहीं कि सिर्फ आप बस किसी का सुन के आ गए, है ना। वही जिससे बोला ना कि यू नीड टू स्पेंड 35 years ऑफ योर कैरियर इन दिस, दैट विल बी योर लाइफ। अगर तुम सेलेक्ट भी हो गए, नहीं हुए तो अलग बात है, सिलेक्ट हो गए, और नहीं हुए तो भी हमको 3-4 साल आपके लग गए इसमें। तो यू शुड बी वेरी मच clear कि why you want to do this, to know yourself. And the third is very exam specific, is that know UPSC, spend time with UPSC. like सिलेबस तो एकदम याद होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, कि एग्जैक्ट पॉइंट्स क्या है। कि आप दुनिया में भी घूम रहे हो, जैसे कोई भी न्यूज चल रही है, मान लो जैसे अभी क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी हमारा मोदी जी ने आदि शंकराचार्य का मूर्ति लगाई है वहां पे, क्या नाम है, उद्घाटन किया उसका। अब आपके अंदर तुरंत ही क्लिक करना चाहिए कि ये चीज अब आपके आ गई, GS1 का पार्ट आ गया है, ये मेन से भी आ सकता है, ये आपके फिल्म से भी आ सकता है। और सिर्फ आदि शंकराचार्य नहीं आएगी, पूरी इंडियन फिलोसफी पूरी आएगी, बिकॉज आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी इंडियन फिलोसफी। तो सारे स्कूल सब कुछ पढ़ लेना हम आपको। तो ये चीज ना आपको हमेशा आना चाहिए कि आप कुछ भी देख रहे हो तो सिलेबस से उसको मैप कर पाओ। फिर अपने PYQ उसी का पार्ट है, नो स्टडी, स्पेंड टाइम विद यूपीएससी, कि PYQ क्या आ रहे हैं, किस क्या ट्रेंड चल रहा है। बिकॉज आई थिंक यूपीएससी को आप क्रैक कर सकते हैं, मतलब उसकी साइकोलॉजी को, कि वो क्यों रिपीट करता है, थीम्स को बहुत बार रिपीट करता है वो सब चीजें। तो आप जब उसके PYQ एनालिसिस करोगे तो कुछ समझ में आएगा। तो ये बात है। बाकी अपना पढ़ो यार, मेहनत बहुत करनी है और उसका रिवॉर्डिंग भी बहुत है। मेहनत बहुत है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। मेहनत से कभी मत डरना, लेकिन स्मार्ट वर्क करना, सिर्फ गधा मजदूरी नहीं होती है।
Okay, so with this we are done, and I must say I thoroughly enjoyed this conversation. So बिल्कुल thanks a बिल्कुल million to both of you for connecting with us and sharing your pitching ideas, beautiful stories, and lively experiences with us. And I'm sure, this is going to help maximum people out there. So thank you so much to both of you, and wishing you all the best for your future ahead. thank Thank you you very for much. having us also. We actually Yeah, really enjoyed this conversation. yeah. Thank you so much. Okay, bye Chalo, bye. bye bye, all the Okay, best. so goodbye.